My name is Sarwat Adil Khan. I am Managing Trustee at Learning Point Foundation. We started Learning Point 3 years back with the concept of training students towards their jobs. To 1 year, we were on 1 year after working 1 year on the ground level, we came to know that many maximum candidates over in this area from Shivaji Nagar to Hegde Nagar, which we cover. We have got students who is not even past the 10th standards, because of which we came up with this concept that we train the students with any age bar through NIOS, which is Open Studies, Alhamdulillah, which has many subjects wherein students get prepared very well, and they can cross their 10th standards, 10th and 12th standards, and getting into their jobs. So we target single mothers, we have huffaz, we have madrasa students, we have dropout students. We all fall into same category where they get dropout, and we train them towards NIOS, and till they get trained towards this 10th and 12th, we make sure that they get trained towards their language training as well as computers, so that basic job, at least they will start up with their basic jobs. Yes, the students who are interested after 12th standard also, we place them for their higher degrees, especially huffaz and this kind of people. Alhamdulillah, our first batch has gone to their degrees this year. Alhamdulillah, many huffaz has gone to their BCA, BBA kind of thing. That is results of Learning Point for these 3 years. कोशिश में उनको ये करते हैं NIOS सब्जेक्ट्स, क्या SLC करते हैं, PUC करते हैं? NIOS 10th standard. After that? NIOS 10th and 12th we will make sure. After that they will get into their colleges. We have tied up with some colleges. First we tried for government institution. Otherwise we have Sophia, which is in Muslim colony. We have Al-Amin, who will give admissions to our students, so they go there. See, again here we are not particular about the timings, because we have students who get into their jobs, who are already into the labor field, who are already into this one. So we give flexible timing according to the candidate. SLC पास होते हैं, 12th पास होते हैं, और इसमें साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग होती है, कंप्यूटर के बेसिक ट्रेनिंग्स होती है, इसमें कुछ एम्प्लॉयमेंट भी होके ही, कुछ और PUC के लिए दाखिला भी हुआ है इसे डिग्री कोर्सेस में। 12th के बाद से जो डिग्री कोर्सेस हैं, जैसे बताया कि अलग में है, कुछ है दूसरी और जगह पे है, तो प्लेसमेंट भी कुछ के हुए हैं। ये सबसे ये है कि जैसा आपसे पहले भी जिक्र हुआ है कि सिंगल पेरेंट्स हैं, कोई ये नहीं है, तो वालिदैन नहीं है, किसको शिक्षा दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं, शौक़ रखते हैं पढ़ने के लिए, उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए पढ़ने के लिए। एक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी गरीबी है, और एजुकेशन भी उस हद तक नहीं है जिस हद तक दूसरी जगह हैं। सो ये कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरत है इस एरिया में ख़ासकर, और मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ लर्निंग पॉइंट और सरवत को कि दे हैव कम अप विद दिस लर्निंग सेंटर, एंड और ये नए प्रेमिसेस में अपना काम फिर जारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए थोड़ा दूर हो गए हैं कि स्कूल में ब्रेक आ गया है, और बहुत सारे बच्चे अब फीस भी भर नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से मदद होना चाहिए, जो भी मुश्किल में है उनको मदद करना चाहिए, और जो दूसरे एवेन्यूज़ हैं जैसा NIOS और जैसा ये लर्निंग पॉइंट जैसे सर्विस सेंटर्स हैं, इसकी बहुत ज़रूरी है। इसमें ना कोई भी उम्र का आदमी पढ़ सकता है, कोई अपर एज लिमिट का कोई नहीं है। कोई 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का वो पढ़ना चाहते हैं तो उनका रुचि है पढ़ने के लिए, पढ़ सकते हैं। और दूसरा है, कोई सब्जेक्ट का कंपलसरी कॉम्बिनेशंस नहीं है। आधातर लोग से आप बात करेंगे तो आपने क्यों ड्रॉप आउट हुए हैं, आधा लोग कहेंगे नहीं मेरे को मैथ्स बहुत मुश्किल था, गणित मेरे को नहीं आता था, मेरे को बहुत मुश्किल था, मैंने 2-3 बार दिया, उसके बाद में सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए ड्रॉप आउट हुए। सो NIOS ऐसे लोगों को मौका देता है वेयर
कोई सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, उनके पास सारी सब्जेक्ट ऐसे बास्केट उनके पास है, कोई भी सब्जेक्ट उनका रुचि का है वो आप ले सकते हैं वो बच्चे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तीसरा है उन्हीं को एक ओकेशनल कोर्सेज, एक स्किल कोर्सेज है वो ऐड करने के लिए हम इनको अलाउ करते हैं एज ए नेशनल बोर्ड। दैट इज़ ऑल्सो अनदर की फैक्टर फॉर द NIOS टू ग्रो। एंड 4 और 5th इज दैट मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे बात करेंगे तो सभी को एग्जामिनेशन फियर होता है, सो वो एग्जामिनेशन फियर NIOS में नहीं होती है, बिकॉज जो भी बच्चा रजिस्टर होता है उन्हीं को 5 साल के लिए मौका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है, और वो 5 साल में उन्हीं का हाउ दे आर कंफर्टेबल उसी का बेसिस पे वो 6 महीना में एक सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, 1 साल में 2 सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हैं, जैसे उनको लगता है कंफर्टेबल लगता है वो उसी में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि मालूम है कि तालीम एक शोबा मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखती है, हर किसी के लिए, स्पेशली हम लोगों के लिए, ताकि करके लर्निंग पॉइंट का असल मकसद यही है कि भाई जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, काम करने के बावजूद, जो काम कर रहे हैं घर की हालात सही न होने के बावजूद पढ़ाई छोड़ दी गई है, उनको वहाँ से कैप्चर करके यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कदम है इनका, और मुझे उम्मीद है कि इससे बड़ी लर्निंग पॉइंट से बड़ी ताकत मिलेगी अक़लियती शोबा को बहुत ज़्यादा ही, और इससे काफ़ी फ़ायदा भी होगा लोगों को। ठीक है, ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है, ये स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, और पहले भी ये लोग कर रहे थे, लेकिन अब जो है बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़े अच्छे काम का ये होगा। इदारा जो स्टार्ट हुआ है लर्निंग पॉइंट, माशाल्लाह मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जो ये एक इदारे से उन्होंने शुरुआत किया है, और मेरे ख्याल से उनका टाई अप भी NIOS के साथ भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के साथ, और स्किल डेवलपमेंट का भी है इनका साथ में, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, कंप्यूटर कोर्सेज है, और साथ में जो फैकल्टी डेवलपमेंट जो इन्होंने किया है, जो FDP प्रोग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि फैकल्टीज़ आप देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग थी, लेकिन आज जो माहौल है बच्चों के अंदर, जो ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ है पैंडेमिक की वजह से, उसमें जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, PPT प्रेजेंटेशंस होते हैं, आजकल स्पोर्ट्स भी ऑनलाइन भी हो रहा है, तो फैकल्टी इक्विप्ड होने के लिए ये जो FDP प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें इन्होंने बहुत ज़ोर दिया है, और एक इनका ऑब्जेक्टिव भी है, वो ऑब्जेक्टिव माशाल्लाह कामयाब होगी, और इदारा जैसे यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं जो काम कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ।